तो हेलो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 હિન્દી વિષયની અંદર પૂછાઈ શકે ને એવા બોર્ડ આઈએમપી માટે મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ, આઈએમપી ટિપ્પણી, આઈએમપી પત્ર, આઈએમપી ગદ્યાર્થ ગ્રંથ, ટૂંકમાં વિભાગ ડી અને સાથે સાથે વિભાગ સી નું આઈએમપી તો મળી જ જશે, પણ સાથે સાથે કદાચ તમે વ્યાકરણમાં કંઈક મૂંઝાતા હોય અને વ્યાકરણને કઈ રીતે તમે ઈઝીલી સોલ્વ કરી શકો, એટલે કે ટૂંકમાં આખું વ્યાકરણ એટલે કે વિભાગ સી અને વિભાગ ડી સમજૂતી સાથે આજે તમને આ વિડીયોમાં મળી જશે। અને સાથે સાથે હિન્દીમાં કયો નિબંધ પૂછાશે, કયા પ્રશ્નો પૂછાશે, કયા ગ્રામરના ટોપિક પૂછાશે, એટલે કે ટૂંકમાં આખું હિન્દીનું મોટા ભાગનું મિનિમમ 40 માર્કનું આ એક જ વિડીયોની અંદર તમને મળી જવાનું છે। તો વિડીયોને અંત સુધી મિત્રો જોતા રહેવાનું છે। હવે આપણે જઈએ છીએ આપણી સ્ક્રીન ઉપર અને જ્યાં તમને વિભાગ સી પહેલા આપણે સોલ્વ કરીએ અને વિભાગ સી પછી વિભાગ ડી ના એક પછી એક ટોપિક આપણે કવર કરતા જઈએ, શીખતા જઈએ, સમજતા જઈએ અને સાથે સાથે આઈએમપી પણ તમને મળતું જશે। વિડીયો લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી જરૂરી છે। તમારા મિત્રોને પણ હેરાન કરનારો વિભાગ સી અને વિભાગ ડી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગ અને લેખન વિભાગના આજે આપણે ભૂક્કા કાઢવાના છે। મિત્રો આ વિડીયો જોઈ લેશો ને એટલે વિભાગ સી અને વિભાગ ડી ની અંદર શું પૂછાશે, કઈ રીતે તમારે એમાં જવાબ દેવાનો, બધાના શોર્ટકટ આજે આપવાનો છે। બેઠે બેઠા જવાબ, પ્રશ્નો બધું તમને આની અંદર મળવાનું છે। જો મિત્રો ખાસ તમે માત્ર ને માત્ર હિન્દીની પરીક્ષા દેવા જતા હોય તો આ વિડીયો ખાસ પૂરો જોજો। અને આના સિવાય આની પહેલાના વિડીયોમાં હવે હિન્દી વિષયની અંદર પૂછાઈ શકે ને એમાં મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ પ્રશ્ન પૂછેલા છે, તો એ વિડીયોની લિંક તમને ઉપર આઈ બટનમાં, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કે આપણી ચેનલમાં મળી જશે। ચોક્કસથી હિન્દી વિષયના ઘણા બધા ચેપ્ટર, પણ આ બે વિડીયો કે જેમને માત્ર હિન્દી પાસ કરવું છે ને પાસ નહીં મિત્રો, એટલા આ 2-3 વિડીયો તમે જોઈ લેશો ને તો ગેરંટીથી 80 માંથી 50 થી વધારે માર્ક તમે કવર કરશો, કારણ કે શોર્ટકટ સાથે અને ઓછા સમયમાં કઈ રીતે હિન્દીમાં સારામાં સારી તૈયારી તમે કરી શકો ને એની ડિટેલ મેં તમને એની અંદર આપેલી છે। આપણે વાત કરીએ હિન્દી વિષયની અંદર વિભાગ સી માં જે વ્યાકરણ આપણને પૂછવામાં છે એની પૂછવાનું છે। હું જો મિત્રો તમને સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી ને એની ડિટેલ અહીંયા આપતો નથી, તમને આવડી જશે। સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી બહુ અઘરા નથી પૂછાતા, અને પણ જે અલગ પ્રકારનું વ્યાકરણ છે કે જે તમે ક્યારેય ભણેલા નહીં હોય એવા જે ખાસ માત્ર હિન્દીનો અભ્યાસ કરતા હોય અને અન્ય જે રેગ્યુલર હિન્દીનો અભ્યાસ કરે છે એટલે કે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ છે, બંને માટેનો આ વિડીયો ખાસ આઈએમપી બનવાનો છે। તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કે કઈ રીતે તમારે જવાબ દેવાનો। તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ છીએ કર્તૃવાચક। હવે કર્તૃવાચકમાં સૌથી મહત્વના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કર્તૃવાચક માટે સૌથી મહત્વનું શું છે એનું આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો અહીંયા તમારી સામે દેખાય છે તમને કર્તૃવાચક સંજ્ઞા। કઈ સંજ્ઞા છે અહીંયા? કર્તૃવાચક સંજ્ઞા। હવે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો કર્તા દર્શાવે ને એને કર્તૃવાચક સંજ્ઞા કહેવાય। કરને વાલા, જેમ કે નૃત્ય શબ્દ એક છે, નૃત્ય સમજો, તમને એક શબ્દ આપેલો હશે ને એને તમારે કર્તૃવાચક શબ્દ તરીકે એનો તમારે કર્તૃવાચક શબ્દ બનાવવાનો છે। કર્તૃવાચક કેટલા માર્કનું પૂછાય છે? 2 માર્ક, રોકડા છે, 2 મિનિટમાં સમજાઈ જશે 2 માર્ક કઈ રીતે તમારે લેવા। જેમ કે એક શબ્દ તમને પૂછ્યો છે, તમને પૂછ્યું છે કે નૃત્ય, શું શબ્દ તમને પૂછ્યો છે? નૃત્ય। આનું તમારે કર્તૃવાચક કરવાનું છે। કોઈ પણ શબ્દનું કર્તૃવાચક કરવું હોય એટલે શબ્દની પાછળ તમારે લગાડવાનું કરને વાલા, અને એક શબ્દમાં એને શું કહેવાય? જેમ કે નૃત્ય, નૃત્ય કરને વાલા, તો એને એક શબ્દમાં કહેવાય નર્તક। શું કહેવાય એને? નર્તક। કર્તૃવાચક એટલે કરને વાલા। પછી શું કરને વાલા એ તમને પ્રશ્નમાં મળી જશે। આપણે જોઈએ તો જો અત્યાચાર પહેલો શબ્દ, આ હવે જો જે પ્રશ્નો હું તમને આપું છું એ બોર્ડ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે। 99% પ્રશ્ન આ મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ થોડા આપું છું ને એની અંદરથી મળી જવાના છે। આપણે સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીએ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા। બીજા બધા કર્તૃવાચક, ભાવવાચક સંજ્ઞા, વિશેષણવાચક સંજ્ઞા,
संधि, समास, आ बधी डिटेल व्याकरणનું બધું કરવાનું છે। પછી વિભાગ ડી ની અંદર મિત્રો વિભાગ ડી તમારા માટે આશીર્વાદ રૂપ છે। હિન્દીમાં 26 માર્કનો વિભાગ ડી છે અને બહુ ઇઝીલી ખાલી આ એક જ વિડીયોને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લ્યો, થોડીક અડધો કલાકની એક્સ્ટ્રા તમે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો, મગજ વાપરી લેશો તો આરામથી મિત્રો તમે 26 માંથી 20 થી વધારે માર્ક લઈ શકો। અને આ વિભાગ સી છે એ તમને 18 માર્કનો છે, તો એમાંથી કદાચ તમે થોડું ખોટું પડે તો આરામથી 12-13 પ્રશ્ન લઈ લ્યો તો આ બે વિભાગમાં જ તમારા મિત્રો 35 માર્કની આસપાસમાં થઈ જશે। અને પછી જે આશીર્વાદ રૂપ એક્સ્ટ્રા મેં તમને એમસીક્યુ કરાવેલા છે, મોટા પ્રશ્ન કરાવેલા છે, આ જ વિડીયોની અંદર હું તમને નિબંધ પણ આપવાનો છું। ટૂંકમાં વિભાગ સી અને વિભાગ ડી ના દરેકે દરેક આઈએમપી પ્રશ્નો આજે હું તમને આપવાનો છું। આપણે શરૂઆત કરીએ કર્तृवाचक संज्ञा। હવે કર્तृवाचक संज्ञा એટલે करने वाला, क्रिया कर्ता दर्शाने वाले शब्द को बोलते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। जैसे ये शब्द है अत्याचार, कौन सा शब्द है ये? अत्याचार। अत्याचार करने वाला એને એક શબ્દમાં શું કહેવાય? તો એને કહેવાય અત્યાચારી। શું કહેવાય એને? અત્યાચારી। એવી જ રીતે બાત મોસ્ટ આઈએમપી શબ્દ છે, कदाच पूछाई सके छे, तो बात करने वाला उसको एक शब्द में बोला जाता है बातूनी। बात का कर्तृवाचक क्या होगा? बातूनी। निर्माण, निर्माण હવે તમને આવડી જશે। निर्माण, निर्माण करने वाला उसको एक शब्द में बोलते हैं निर्माता। क्या बोलते हैं उसको? निर्माता। खुशामद, खुशामद करने वाले को पीछे लगा देना खुशामदक। क्या करने वाला? खुशामद करने वाला, तो खुशामदक ऐसा लिख सकते हैं। सुनना, तो सुनने का काम करने वाला उसको एक शब्द में बोला जाता है श्रोता। क्या बोला जाता है? श्रोता। हवा, याद रखना ये हवा का कर्तृवाचक क्या होता है? हवाई। हवाई, हवा देने वाला, हवा का काम करने वाला उसको बोला जाता है हवाबाज, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हवाई, लेकिन हम लिखेंगे हवाबाज, हवाबाज ऐसा लिख सकते हैं। सृजन, तो सृजन का कर्तृवाचक, सृजन यानी कि क्रिएटर, सर्जन। सर्जन का कर्तृवाचक क्या होता है? सृजन करने वाला उसको एक शब्द में बोला जाता है सर्जक। क्या कहा जाता है उसको? सर्जक। ओके। विज्ञान, विज्ञान को एक शब्द में क्या कहा जाता है? विज्ञान का काम करने वाला उसको एक शब्द में बोला जाता है वैज्ञानिक। क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक। शिकार, शिकार का काम करने वाला उसको बोलते हैं शिकारी। विश्लेषण, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। विश्लेषण का काम करने वाला, ये हण निकाल देना है और विश्लेषक क्या बनेगा? विश्लेषक। प्रश्न, ये मोस्ट आईएमपी है। प्रश्न का काम करने वाला या फिर प्रश्न पूछने वाला, तो प्रश्न पूछने वाले को क्या बोलते हैं? प्राश्निक। क्या लिखना है हमें? प्राश्निक, ऐसा आंसर लिखना है। उपदेश, तो उपदेश करने वाला, उपदेश देने वाला उसको बोलते हैं उपदेशक। बुनना, मोस्ट आईएमपी ये शब्द है, एक एग्जाम्पल सॉरी चैप्टर में से लिया गया ये एग्जाम्पल है। बुनना, बुनने का काम करने वाला, गुजराती में આપણે જેને ગૂંથવું કહીએ ને એને હિન્દીમાં કહેવાય છે बुनना। तो बुनने का काम करने वाले को एक शब्द में बोला जाता है बुनकर। ऐसा बेटा याद रख लेना। तो ये है हमारे मोस्ट आईएमपी कर्तृवाचक संज्ञा। ऐसे कोई भी कर्तृवाचक पूछा जाए आपको क्या करना है? कोई भी शब्द हो उसके पीछे लगा देना ये काम करने वाला, कर्ता के लिए, कर्ता यानी क्रिया करने वाला। अत्याचार, अत्याचार की क्रिया करने वाला उसको बोलते हैं अत्याचारी। बात, बात की क्रिया करने वाला बातूनी। निर्माण, निर्माण की क्रिया करने वाला निर्माता। तो कोई कर्ता दिखाने वाला जो शब्द हो ना उसको बोलते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? भाव, भाव का मतलब होता है इमोशंस, लागणी गुजराती में આપણે જેને કહીએ। तो
जो शब्द जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाव, इमोशंस। तो आपको जो शब्द दिया जाएगा वो भाववाचक शब्द नहीं होगा, लेकिन उस शब्द को आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना होगा। यह भी कितने मार्क में पूछा जाता है? 2 मार्क में पूछे जाते हैं। और इसकी एक बात बता दूं आपको, ये कर्तृवाचक, भाववाचक, विशेषणवाचक संज्ञा, ये सभी हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट आईएमपी शब्द है वो यहां पर मैंने लिख कर रख दिए हैं। आप इतने का याद रख लेना, और इसके अलावा कोई पूछा जाए फिर भी आपको आ जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे कर्तृवाचक में हमने देख लिया, सीख लिया कि करने वाला ऐसा लगा देना, और एक शब्द में जो बोला जाए शिकार, शिकार करने वाला, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? शिकारी। ऐसा ही भाववाचक है। कोमल, तो कोमल में से हमें इसका भाववाचक कैसे बनाना है? तो हमें या समझना है, कोमल, कोमल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रही कोमलता को हम देख नहीं सकते। उसके पीछे कोई प्रत्यय लगाना होगा। कोमल का होगा कोमलता। देखो बेटा, कर्तृवाचक बनाना है, विशेषण बनाना है, भाववाचक बनाना है, पीछे कोई ना कोई प्रत्यय लगाना होगा। जैसे कोमल है तो कोमल को हम छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की कोमलता को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भारत, भारत एक देश है, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर रहा हुआ भारतीयता, भारत का भाववाचक क्या बनेगा? भारतीयता। क्या बनेगा? भारतीयता। उसी प्रकार से समान, तो समान का भाववाचक क्या बनेगा? वेरी इजी है, ये बहुत ही सिंपल है, समानता। उसी प्रकार से आवश्यक, पीछे लगा देना आवश्यकता। हो गया इसका आंसर, आवश्यक। और आवश्यक का भाववाचक होता है आवश्यकता। जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से कांपना, हम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रही कंपन हम नहीं देख सकते। तो कांपना का भाववाचक होगा कंपन। क्या इसका राइट आंसर होगा? कंपन। आदमी, आदमी का मोस्ट आईएमपी शब्द है, आदमी का भाववाचक होगा आदमीयत। क्या होगा? आदमीयत। उसी प्रकार से डाकू, डाकू को हम देख सकते हैं, लेकिन डाकू का भाववाचक होगा डाकूपन, या फिर डकैती भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डकैती या फिर डाकूपन। पंडित, पंडित का भाववाचक क्या होगा? पंडित को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रहा पांडित्य हम नहीं देख सकते, पांडित्य। उसी प्रकार से खुश को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की खुशी को हम नहीं देख सकते, तो इसलिए खुशी होगा भाववाचक। लज्जित, उसका भाववाचक होगा लज्जा। क्या होगा उसका भाववाचक? लज्जित, तो उसका होगा लज्जा। इसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, लज्जा का विशेषण क्या बनता है? लज्जित। जरूर, तो जरूर का भाववाचक होगा जरूरियात। जरूरियात, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शब्द लिखते हैं बंधन। हमारा शब्द है बांधना, सॉरी बांधना। बांधना का आंसर होगा बंधन। बहुत, ये भी मोस्ट आईएमपी शब्द है। बहुत, बहुत का भाववाचक होगा बहुतायत, बहुताई। लास्ट एग्जाम में पूछा गया ये एग्जाम्पल है बहुतायत। याद रखना बेटा, ये रट्टा मारना होगा। बहुत, बहुत का भाववाचक क्या होगा? बहुतायत। मिलना, तो ये ना निकालना है और इसका आंसर लिख देना है मिलन। मिलना, तो भाववाचक क्या होगा? मिलन। महंगी, तो महंगाई, महंगाई। मनुष्य, तो मनुष्यता, ऐसा उसका भाववाचक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम
विशेषणवाचक संज्ञा। कोई भी शब्द को हम विशेषण के रूप में कैसे बदल सकते हैं? तो विशेषण, विशेषण क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? शायद आपने गुजराती में भी पढ़ा होगा, जो कोई शब्द किसी अन्य शब्द के अर्थ में बढ़ोतरी करे। ગુજરાતીમાં સમજીએ તો નામના અર્થમાં વધારો કરે, નામની વિશેષતા બતાવે એને વિશેષણ કહેવાય। તો તમને એક શબ્દ આપેલો હશે, એનો તમારે એવો શબ્દ બનાવવાનો કે જે વાક્યમાં વિશેષણનું કામ કરે। પહેલો શબ્દ છે ગાવ। હવે ગાવને તમે વિશેષણ તરીકે, હવે સમજો ये गवार इंसान है। गवार એટલે એનો અર્થ શું થાય? ગામડાનો અભણ માણસ હોય એને ગવાર કહેવાય। તો गाव का विशेषण क्या होगा? गवार हो गया। विशेषण कैसे बनाना है? कोई भी एक सामान्य शब्द है उसको हमें विशेषण के रूप में बदलना होगा, यानी कि उसके पीछे कोई ऐसा प्रत्यय लगाना होगा जिससे वो शब्द क्या बन जाएगा? विशेषण के लिए उपयोग में लिया जा सके। ऐसा हमें एक शब्द बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके पीछे कोई शब्द लगाना होगा। जैसे गांव, गांव के पीछे क्या लगा दिया? आर, इससे क्या शब्द बन गया? गवार। उसी प्रकार से शरीर, शरीर का विशेषण बनाना है तो शब्द बिल्कुल सिंपल है, शरीर का होगा शारीरिक। क्या इसका आंसर होगा? शारीरिक। तो ये शारीरिक कार्य कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो शारीरिक कार्य, कैसा कार्य? शारीरिक कार्य। तो बेटा याद रखना, विशेषण जब भी हमें आप कोई भी विशेषण बनाओ ना, तो उसको मगज में, दिमाग में एक वाक्य बना लेना कि आप जिसको विशेषण के रूप में लिखने जा रहे हो, क्या वो वाक्य में विशेषण का काम कर सकता है? जैसे ये गवार इंसान है, ये शारीरिक क्रिया कर रहा है। उसी प्रकार से अविनाश, अविनाश का क्या होगा? अविनाशी। जिसका कभी विनाश ना उसको बोलते हैं अविनाशी। तो ये अविनाशी मनुष्य है। कैसा मनुष्य है? अविनाशी मनुष्य है। चमक, चमक का क्या होगा? चमकीला। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। ये चमकीला चेहरा है। वो साधु उपदेश में से ये शब्द निकाला है। देह, ये आईएमपी शब्द है, शायद ये हो सकता है। तो देह का विशेषण क्या बनता है? देहिक। क्या होगा? देहिक। ये देहिक। मखमल, तो मखमल का विशेषण होता है मखमली। मखमल का विशेषण क्या होगा? मखमली। उसी प्रकार से यहां पर देख लेते हैं हर्ष, तो हर्ष का विशेषण होगा हर्षित। उसी प्रकार से कश्मीर, तो कश्मीरी। प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठित। यहां पर ऐसा लिखना होगा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। उसी प्रकार से प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंबित, ऐसा लिखना है, समझ लेना। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित। समय, तो उसका विशेषण होता है सामायिक। ऐसा आंसर लिख देना। समय का कर्तृवाचक क्या होता है? सॉरी, विशेषण क्या होता है? सामायिक। याद रखना, कोई भी शब्द ऐसा होना जिसका हमें विशेषण बनना है, आपको करना क्या है? ऐसा एक शब्द बनाना है जो वाक्य में विशेषण का काम कर सके। ये सामायिक कार्य कर रहा है। सामायिक कार्य यानी कि निश्चित समय में काम करना। तो प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंबित चेहरा है। प्रतिबिंब, समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठित। कोई ऐसा शब्द बनाना जो किसी अन्य शब्द के अर्थ में बढ़ोतरी करे। नामना, कोई अन्य शब्दના અર્થમાં વધારો કરે ને એવો એક શબ્દ તમારે બનાવવાનો છે। ટૂંકમાં વાક્યમાં વિશેષણનું કામ કરી શકે એવો એક શબ્દ બનાવવાનો છે। પરિવાર, તો એનું વિશેષણ થાય પારિવારિક। क्या याद रखना? पारिवारिक। ये होगा उसका विशेषणवाचक संज्ञा। ओके। बर्फ, तो उसका होगा बर्फीला। उसी प्रकार दिन, तो उसका होता है दैनिक। याद रखना, ज्यादातर 90%, 99% आमांथी ज कोई शब्द आवी जशे। उसी प्रकार से परिवार, शायद आगे हो गया है। परिवार का आगे परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक। और संसार, तो उसका विशेषण होगा सांसारिक। क्या होता है?
सांसारिक, ये उसका विशेषण होता है। ओके, तो 6 मार्क का बेटा हो गया, अभी पता भी नहीं चला। 2 मार्क्स के कर्तृ और कर्तृवाचक, 2 मार्क्स के भाववाचक और 2 मार्क के विशेषण। ये विशेषण भी कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? 2 मार्क्स में हमें पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं समास, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हिंदी में ऑप्शन नहीं होते। ज्यादातर जो ऑप्शन हमें भर भर के ऑप्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी में 18 यानी कि 18 मार्कना एमसीक्यू पूछा છે એનો વિડિયો જોઈ લેજો એકવાર ખાસ બધા ડિટેલમાં વિડિયો અને એની બહાર લગભગ એમસીક્યુ કાંઈ જાય એવા ઓપ્શન વાળા જે નાના નાના પ્રશ્નો છે, એક એક વાક્ય વાળા પ્રશ્નો ને બધું એની અંદર કવર થશે અને મોટા પ્રશ્નો કયા કયા પૂછાય એનો વિડિયો પણ નીચે હિન્દીનો જે આખી પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે એની અંદર તમે લાસ્ટ થોડા ઘણા સમય પહેલા મેં વિડિયો મૂકેલો છે, એનો અભ્યાસ કરજો। આપણા નિબંધ પણ તમને આપવાનો છે આમાં। હવે સમાસ આપણે જોઈ લઈએ। समास, समास किसे बोलते हैं? 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनाए उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर एक शब्द बनाए उसे बोलते हैं सामासिक, सामासिक शब्द या फिर उसको समास भी कहा जाता है। पहला समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़। द्वंद्व એટલે શું થાય? જોડી। આપણે જેને હિન્દીમાં કહીએ છીએ जोड़, पेर। तो कोई भी शब्द का विग्रह करने के लिए 2 शब्द के बीच में और या अथवा, द्वंद्व में क्या याद रखना? 2 शब्द के बीच में कोई भी शब्द है उसका विग्रह करना है। विग्रह करना यानी शब्द को अलग अलग करना। जैसे ये पहला शब्द है लंबे चौड़े, तो इन्हें આપણે નોખું કરીએ તો શું થાય? લંબા और चौड़ा। तो કોઈ પણ શબ્દની વચ્ચે એનો વિગ્રહ કરવા માટે, એનો અર્થ કાઢવા માટે, એને છૂટા પાડવા માટે તમારે વચ્ચે और या अथवा આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ વાપરવું પડે ને એટલે ઈ દ્વંદ્વ સમાસ હોય। ગુજરાતીમાં કહેવાય અનેકે અથવા લંબે ચોડે, લાંબુ અને પોળું, ચોડે એટલે પહોળે। પશુ પક્ષી, पशु और पक्षी। सुनी अनसुनी, सुनी या अनसुनी, पशु और पक्षी। सोच विचार, सोच और विचार। कोई भी बिल्कुल इजी समास है या द्वंद्व समास। कोई भी शब्द ऐसा है जिसके विग्रह करने के लिए, जिसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 शब्दों के बीच में, यानी कि ये 2 शब्द है, 2 शब्द मिलकर ही एक समासिक शब्द बनता है, लंबा और चौड़ा। तो ये लंबे चौड़े एक ही शब्द है, लेकिन उसको विग्रह करने के लिए यानी कि उसको अलग करने के लिए लंबा और चौड़ा, 2 बीच में क्या लगाया मैंने? और। तो और या अथवा बीच में ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़े तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिस सामासिक शब्द का विग्रह करने के लिए बीच में विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय हिंदी में कौन कौन सा है? का, की, को, में, से। याद रखना, 2 शब्द के बीच में का, की, को, में, का, की, को, में, से, इसमें से कोई किसी का भी प्रयोग करना पड़े बीच में शब्द को अलग करने के लिए। जैसे ये मोर पंखा, तो मोर का पंखा, बीच में क्या लगाना पड़ा? मोर पंखा। तो उसका विग्रह करने के लिए, उसको अलग करने के लिए समास में शब्द को पहले अलग करना पड़ता है, तभी उसका पहले हम अलग करते हैं, बाद में ही उसका समास किस प्रकार का समास है उसका पता हमें चलेगा। जैसे तत्पुरुष समास है ना, तो उसको विग्रह करने के लिए, उसको शब्द को अलग करने के लिए 2 शब्द के बीच में का, की, को, में, से, इसमें से कोई भी एक अक्षर का, एक प्रत्यय का, एक शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मोर पंखा, तो मोर का पंखा। कंठावरुद्ध, कंठावरुद्ध एनो विग्रह શું થાય? कंठ से रुद्ध, यानी कि जिसका कंठ बूढ़ा हो गया है, कंठ से अवरुद्ध, सॉरी, कंठ से अवरुद्ध, कंठ से अटका हुआ। मनुष्य समाज यानी कि मनुष्य का समाज, मनुष्य समाज यानी कि मनुष्य का समाज। लोक लाज, लोकों की लाज, लोक लाज क्या क्या, तो उसका विग्रह क्या होगा? लोकों की लाज। युद्ध जर्जर, युद्ध से जर्जर,
त्याग पत्र, त्याग का पत्र। तो दो शब्दों के बीच में, यानी कि कोई भी एक शब्द है उसका विग्रह करने के लिए दो बीच में हमें कोई भी एक शब्द है, जैसे युद्ध जर्जर, ये दो शब्द है। त्याग पत्र, तो त्याग और पत्र दो शब्द है, बीच में क्या लगाने पड़ता है, का, की, को, में से, इसमें से कोई भी एक अक्षर लगाना पड़े, एक भी, उसको बोलते हैं का, की, को, में से। इसको क्या बोलते हैं, विभक्ति प्रत्यय। ऐसी कोई भी विभक्ति प्रत्यय लगानी पड़े तो का, की, को, में से, ऐसी कोई भी विभक्ति प्रत्यय लगानी पड़े तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, बहुत ही इजी समास है ये, द्विगु समास। द्विगु की एक पहचान है, द्वि का मतलब होता है दो, तो गु का मतलब होता है गाय, दो गाय का समूह। तो याद रखना है, पहला शब्द हमेशा द्विगु समास में पहला शब्द कोई न कोई संख्या बताएगा। क्या बताएगा, संख्या बताएगा। और दूसरा शब्द कोई न कोई समूह बताएगा। क्या बताएगा, समूह। दो पहर, तो इसका विग्रह क्या होता है, दो प्रहर का समूह, दो प्रहर का समूह। चौराहा, चार रास्तों का समूह। चार पाई, चार पहियों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। नवरात्रि, नवरातों का समूह। पंचायत, पांच आयत का या फिर पांच व्यक्ति का समूह। उसी प्रकार से चौक, चार रास्तों का समूह। तो ऐसे कोई भी ऐसा शब्द है, जैसे ये शब्द याद रखना, मुझे अभी याद आ रहा है, शायद आपको पूछा जा सकता है, षड्रिपु, ष ड या ट भी हो सकता है, रिपु, इसका मतलब क्या होता है, छह दुश्मन का समूह। रिपु, षड का मतलब होता है छह और रिपु यानी दुश्मन। तो द्विगु किसको बोलते हैं, पहला शब्द संख्या बताए और दूसरा शब्द कोई समूह बताए, उसको बोलता है द्विगु समास। नेक्स्ट हम लेते हैं कर्मधारय समास। दो, आगे हमने विशेषण की बात की थी। विशेषण किसे बोलते हैं, जो एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ में बढ़ोतरी करे उसको बोलते हैं विशेषण। और विशेषण जिसके अर्थ में बढ़ोतरी करता है उसको बोलते हैं विशेष्य। जैसे अच्छा, सज्जन शब्द है, कौन सा शब्द है, सज्जन। यहां पर देखो शब्द सज्जन, इसका विग्रह क्या होता है, अच्छा इंसान। सत प्लस जन, ऐसा ये शब्द समान संधि में याद रखना, सत प्लस जन इक्वल टू सज्जन होता है। संधि भी शायद इसकी हो सकती है। सज्जन यानी कि अच्छा इंसान, तो अच्छा है वो विशेषण है और इंसान उसका विशेष्य है। तो ऐसा कोई भी शब्द है जो दो शब्दों में एक शब्द विशेषण का काम कर रहा है और एक शब्द विशेष्य का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। सदाचार यानी कि अच्छा आचार, तो अच्छा विशेषण, आचार विशेष्य। सज्जन, अच्छा इंसान। सब्ज बाग, सब्ज यानी झूठे, बाग यानी सपने, झूठे सपने, झूठे ख्वाब। नव युवक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, शायद हमें यह द्विगु लग सकता है। क्यों, क्योंकि ये नव दिख रहा है, लेकिन ये नव का मतलब यहां पर 9 वो संख्या नहीं है। नव युवक, नव युग, ऐसा कोई भी शब्द हो तो नव युवक का मतलब क्या होता है, नया युवक। क्या मतलब होता है इसका, नया युवक। तो ये भी होगा कर्मधारय समास। अब ये जो 4-5 जो शब्द हमने देखे, ये दोनों के बीच में क्या संबंध था, एक शब्द विशेषण था, दूसरा शब्द विशेष्य था। तो एक शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, तभी कर्मधारय समास बनते हैं। दूसरा भी कर्मधारय समास एक दूसरा भी होता है, एक शब्द की कंपैरिजन, एक शब्द की तुलना किसी दूसरे शब्द के साथ हो रही हो तभी कर्मधारय, तो भी फिर भी कर्मधारय समास बनते हैं। जैसे राम रतन, राम के रूप में रतन, या फिर राम जैसा रतन। काल जलधि, जलधि का मतलब होता है जलधि, उदधि, समुद्र का समानार्थी है ये। काल जलधि यानी कि समय रूपी समुद्र। सुशिक्षित, अच्छा शिक्षित, तो एक की चरण कमल, चरण जैसे कमल, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी शब्द है जो पूरा शब्द एक दो शब्द के बीच में कोई कंपैरिजन, एक को दूसरे के रूप में बदल दिया। चरण कमल, कमल नयन, तो कमल नयन यानी कि कमल जैसे नयन। चरण कमल, चरण कमल का मतलब क्या होता है, चरण जैसे
कमल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें एक को दूसरे की रूप एक दूसरे के साथ तुलना हो रही है, एक को दूसरे का रूप दिया जा रहा है, तभी तो भी फिर भी कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में दो रूप है, जिसको व्याकरण की व्याख्या में आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि कर्मधारय समास में ऐसे दो संबंध होते हैं, विशेषण विशेष्य संबंध और उपमेय उपमान संबंध। उपमेय उपमान में इसको डिटेल में बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, और लास्ट टाइम में इतना समय मुझे आपका नहीं लेना है। शायद इतना ही समझ लीजिए कि एक शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो भी कर्मधारय लिख देना। और ये दो शब्द के बीच में कोई एक ही शब्द है, जैसे राम रतन, तो उसका विग्रह होगा, क्या होगा? राम और रतन। ऐसा मत कर देना वरना द्वंद्व हो जाएगा। राम रतन, राम के रूप में रतन, ऐसा हम विग्रह करेंगे तो कर्मधारय रूप में जैसा, ऐसा कुछ आ जाए ना, तभी कर्मधारय समास बन जाता है। नेक्स्ट होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। किसको बोलते हैं? जो पूरा शब्द किसी तीसरे शब्द का विशेषण बनता है, तभी बनता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का एक दूसरी एक पहचान है, शॉर्टकट है, जो तो ऐसा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जो ... तो ऐसा लगाना पड़े। जैसे एक शब्द है विधवा। क्या शब्द है? विधवा। अब विधवा किसको बोलते हैं? शायद इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। विधवा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ बताओ। विधवा जिसकी पत्नी हयात नहीं है, जिसकी पति मर गई है, वो उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। तो जो और वो, जो और तो, ऐसा कुछ लगाना पड़े ना, तभी बहुव्रीहि समास बनता है। जो और ज्यादातर तो के स्थान पर हमेशा वो ही ज्यादा होते हैं। तो अनगिनत, जिसे गिना नहीं जा सके वो। अनजान, जो जान पहचान वाला नहीं है वो। शांति प्रिय, जिसे शांति प्रिय है वो। विधुर, विधुर किसको बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर गई है वो, उसको बोलते हैं विधुर। विधवा को किसको बोलते हैं? जिसका पति मर गया है उसको बोलते हैं विधवा। विधवा शब्द याद रखना। विधवा का मतलब क्या होता है? जिसका पति मर गया है, ऐसी स्त्री। तो ये सभी शब्द क्या है? हमेशा किसी अन्य शब्द के अर्थ में बढ़ोतरी करते हैं। हमेशा उसका खुद का कोई इतना महत्व नहीं है, इतना मूल्य नहीं है, लेकिन हमेशा वो किसी अन्य तीसरे शब्द, किसी अन्य शब्द के अर्थ में बढ़ोतरी करते हैं, किसी अन्य शब्द के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे अनगिनते, ये अनगिनत लोग हैं, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते वो। अनजान, जो जानता नहीं है, जो जानकार नहीं है वो। शांति प्रिय, जिसे शांति प्रिय है वो। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई है वो। दत्त चित्त, जिसका दत्त और चित्त, जिसका दत्त चित्त में, यानी कि जो एकदम मन से एकाग्र है वो। निराश, जिसमें कोई आशा नहीं है वो। निराश के साथ साथ एक शब्द ये भी याद रख लेना, हताश। हताश किसको बोलते हैं? जिसकी आशा मर गई है वो, उसको बोलते हैं हताश। निराश, जिसमें कोई आशा नहीं है वो, उसको बोलते हैं निराश। आपको शब्द इसका शॉर्टकट क्या है? आप शब्द पढ़ना, आपको ऐसा लगे कि यह शब्द तो हमेशा किसी अन्य शब्द के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो वो समास बहुव्रीहि समास ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट समास है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल इजी समास है ये। यथाशक्ति, प्रतिदिन, जन्म, सालों साल, प्रत्यक्ष। आपको याद क्या रखना है? किसी भी शब्द के आगे यथा देखने को मिल जाए, क्या क्या मिल जाए? यथा मिल जाए, प्रति देखने को मिल जाए, कोई भी शब्द के आगे आ लिखा हो, कोई भी शब्द के आगे अ लिखा हो, कोई भी शब्द के आगे प्र लिखा हो, कोई भी प लिखा हो, ऐसे सभी शब्द अव्ययी समास कहते हैं। वैसे तो अव्ययी की तो पूरी डेफिनेशन बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट याद रख लेना। किसी भी शब्द यथा से कैसे शब्द बनते हैं? यथा शक्ति, यथा मति, ऐसे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये यथा है ना बेटा, उसको बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं उसको? अव्यय। और ये यथा अव्यय मिलकर पूरे शब्द को भी अव्यय बना दे, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास।
लेकिन आप इतने डिटेल में मत चले जाओ। आप इतना ही याद रखना, किसी भी शब्द के आगे यथा, प्रति, आ, अ, प्र, प, ऐसा कोई भी प बहुत कम शब्दों में होते हैं, लेकिन ये सभी शब्द यथा, प्रति, आ, ऐसे कोई भी शब्द आपको देखने को मिल जाए तभी ये अव्ययी समास होगा। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक खुद भी अव्ययी भाव समास ही बनता है। आज जन्म, जन्म से आज तक। सालों साल यानी कि प्रत्येक साल। प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो प्र है, कौन है? प्र। प्रत्यक्ष के स्थान पर परोक्ष भी हो सकता है, प से यह शब्द बनता है परोक्ष। तो परोक्ष भी कौन सा समास होगा? ये अव्ययी भाव समास ही बनता है। समझ में आ रहा है? तो अव्ययी भाव समास आप कैसे याद रखेंगे? अव्ययी भाव समास आप कैसे याद रखेंगे? याद रखना, जो किसी भी शब्द के आगे यथा, प्रति, आ जन्म, आ जीवन, आ मृत्यु, आ मरण, ऐसा कोई भी शब्द आ आगे आए तो अव्ययी भाव समास लिख देना। आपका आंसर 100% सही होगा। बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ मदद हो रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर देना। और जो भी जान पहचान वाले 10th वाले, 12th वाले, यानी कि 10वीं 12वीं जो भी पढ़ रहा है, उसको ये हमारी चैनल है, उसको आवश्यक आपकी एक एक लाइक हमें काफी सारी मोटिवेशन दे जाती है। तो इसलिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। नेक्स्ट हम अब जाते हैं हमारे विभाग डी में। विभाग डी में सबसे पहले पूछे जाते हैं टिप्पणी। याद रख लेना, टिप्पणी बहुत ही इजी है। शायद आपको, यदि आपके पास ना हो तो हिंदी के टेक्स्ट बुक में भी है। हिंदी के रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट बुक हो या भी कोई भी प्रकाशन का कोई भी बुक है तो उसमें ये टिप्पणी मिल जाएगी। 3 मार्क्स पूरे ये देती है टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब होता है शॉर्ट नोट। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट हमें लिखना है। यानी कि कोई भी, जैसे ये कंप्यूटर, ये 4, वैसे तो 9 जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन आप कि कौन कौन सी टिप्पणी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी टिप्पणी आपको एग्जाम में करके जानी है, वो समझ लेना। ऐसी कौन सी टिप्पणी है जो इस साल शायद हमें पूछी जाएगी। तो याद रखना, कंप्यूटर इज मोस्ट आईएमपी। कंप्यूटर है, उसके बाद ईमेल और समाचार पत्र, ये 3 है वो मोस्ट आईएमपी है। लेकिन साथ में मैं डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिकेशन, इसको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो कंप्यूटर किसने बनाया, क्या काम हो रहा है, शुरुआत में कंप्यूटर कैसे थे, आज के कंप्यूटर कैसे है, इसकी थोड़ी सी आपको 3 मार्क्स के लिए पूरा एक पैराग्राफ यानी कि 10-15 लाइन लिख देनी है। कंप्यूटर क्या है एक बार पढ़ लेना। ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में, चार्ल्स बेबेज इसके पिता थे वगैरह, इसके बारे में हमें लिखना है। समाचार पत्र, पहले के समय में समाचार पत्र कैसे थे, आज के समय में कैसे, वो थोड़े, और डीटीपी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब उसको वो नहीं चल रहा है, इसलिए शायद ये बोर्ड वाले भी नहीं पूछेंगे। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम हो रहा है। तो ये सभी टॉपिक है डीटीपी। एक एक बार बेटा, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और रट्टा नहीं मारना है, उसके बारे में केवल लिख देना है, और ज्यादा लिखना भी नहीं है। 3 मार्क्स का है, इसलिए 10 लाइन से 15 लाइन के आसपास में इसके बारे में हमें लिख देना है। अब ये सबसे इजी 5 मार्क देने वाला हमारा टॉपिक है। कितने मार्क हमें दे रहा है ये टॉपिक? पूरे के पूरे 5 मार्क्स ये एक ही टॉपिक हमें देने वाला है। कौन सा टॉपिक है? पत्र लेखन। हमें पत्र लिखना आना चाहिए। अरे भाई, पत्र लिखना आता ही है ना, लेकिन वो ढांचा, वो फॉर्मेट आवश्यक है। आपको पत्र का क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए कि आपको प्रश्न का कोई भी एक टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में 1 या 2 एड्रेस दिए जाएंगे। जैसे ऐसे यहाँ पर एक प्रश्न में आपके लिए लिख देता हूं कि क्या होगा प्रश्न। ऐसा कुछ लिखा है, 37 अक्षर सोसाइटी, सोसाइटी समझ लेना, अक्षर सोसाइटी जूनागढ़, अक्षर सोसाइटी जूनागढ़ से मानव अपने मित्र राहुल को
57 रिंग रोड राजकोट में जीवन में वृक्षों का महत्व जीवन में वृक्षों का महत्व समझाते पत्र लिख रहा है। समझ लेना, ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ ये आपका? ये जस्ट मैंने आपको ये प्रिंटेड, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है। आपको पूछा जाएगा कि ऐसा पत्र आपको लिखना है। क्या पत्र है? 37 अक्सर सोसाइटी जूनागढ़ से मानव अपने मित्र राहुल को, किसको पत्र लिख रहा है? पत्र कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है ये समझना होगा। तो अक्सर सोसाइटी जूनागढ़ से मानव अपने मित्र राहुल को 57 रिंग रोड राजकोट में जीवन में वृक्षों का महत्व समझाते हुए पत्र लिख रहा है। बेटा कोई भी क्वेश्चन पत्र का प्रश्न पहले सामने आए तो दो बार पढ़ के दो पार्टी के बारे में, दो इंसान, दो लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि पत्र भेज कौन रहा है और पत्र, यानी कि पत्र सेंडर कौन है और पत्र रिसीवर कौन है, पत्र भेजने वाला कौन है और पत्र प्राप्त करने वाला कौन है। क्योंकि यहां पर ही कंफ्यूजन होने वाली है। यहां पर हमारे सामने यहां पर दो एड्रेस दिखाई दे रही है। 37 अक्सर सोसाइटी जूनागढ़, ये भी एक एड्रेस है। 57 रिंग रोड राजकोट, ये भी एक एड्रेस है। यहां पर हमें इसका ढांचा ऊपर लिख देना पत्र लेखन। आंसर में पहले क्या लिख देना है? पत्र लेखन। यहां से हमारा आंसर शुरू होता है। अब देखो यहां पर क्या लिखना है? यहां पर पहले, यहां पर हमारे आपके जो पेज है उसके राइट साइड में, कहां पर? जमणी बाजू, गुजराती में समझी लियो, जमणी बाजू यानी कि दाहिनी और राइट साइड लिखना है। किसका पता लिखना है? पत्र भेजने वाला। पत्र भेजने वाला कौन है? मानव। तो मानव का पूरा नाम, यदि नाम आया आपको दिया ही जाएगा, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। किसका नाम लिखना है? पत्र भेजने वाला। यहां पर क्या लिखा है? मानव। यहां पर मानव लिख दिया। उसके बराबर नीचे उसका सरनामों का ये एड्रेस यहां पर लिख देना है। 37 अक्षर सोसाइटी, यहां पर हो जाएगा कोमा जूनागढ़। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखना है आपको? जूनागढ़। और लास्ट में यहां पर नाम हो गया, यहां पर एड्रेस हो गया, यहां पर पिन कोड वगैरह आपको डिटेल में जितना भी पता दिया हो सब कुछ यहां पर लिख देना है। और हर एक लाइन के नीचे कोमा कर देना है। पिन कोड भी लिख सकते हैं यहां पर। पिन कोड यदि आपको पता नहीं है तो 6 टाइम 0000000 कर देना, यानी कि वो पिन कोड हो जाएगा। और यहां पर लास्ट में लिख देना दिनांक। क्या लिखना है यहां पर? दिनांक, इतना लिख देना। और दिनांक क्या होता है याद रखना। दिनांक कब का लिखना? मान लीजिए कि हमारा हिंदी का एग्जाम 22 मार्च को है, तो यहां पर लिख देना 22/3/2024। हो गया? तो यहां पर ये लिख लिया, यानी कि हमें काफी सारा अच्छा ढांचा बना लिया। यह फॉर्मेट है। यहां पर याद रखना, समझ में याद रखना, यहां पर किसके बारे में लिखा जाता है? भेजने वाला। आपको प्रश्न में समझ में ये आना चाहिए कि पत्र कौन भेज रहा है और किसे भेज रहा है। भेज कौन रहा है? मानव। तो यहां पर मानव का पहले नाम, दूसरी लाइन से उसका एड्रेस लिखना है और लास्ट में गलती मत करना, लास्ट में दिनांक, तारीख लिखना कंपलसरी है, फर्जियात है। और दिनांक कब की लिखनी है? जब जिस दिन हम पत्र लिखते हैं वो दिन यहां पर लिखना है। अब यहां से हमें आ जाना है हमारी राइट साइड में। समझ में आ रहा है? सॉरी, हमारी लेफ्ट साइड में, हमारी बाईं ओर हमें आना है। ડાબી બાજુ આવીને હવે કરવાનું છે સંબોધન। હવે સંબોધન એટલે શું થાય?
પત્ર કોને મોકલવામાં આવે છે એને રિલેટેડ એક શબ્દ વાપરવો પડે. પ્રિય, પૂજ્ય, ચિરંજીવી, વંદનીય, આદરણીય, આને રિલેટેડ આના નિયમો હોય છે. બધા માટે બધા શબ્દો ન વપરાય. હવે જો અહીંયા કોને મોકલે છે તો પોતાના મિત્રને. મિત્ર માટે કયું સંબોધન આવે તો મિત્ર માટે હંમેશા એક જ સંબોધન છે. ક્યાં લખવાનું છે? જ્યાં તમારી દિનાંક છે ને બરાબર એની નીચે ડાબી બાજુ હાયલું જવાનું અને અહીંયા લખવાનું છે પ્રિય મિત્ર, પ્રિય મિત્ર, કોમા નીચેનું નામ લખી શકાય राहुल. प्रिय मित्र राहुल. ये बहुत बढ़िया आंसर हमारा हो गया. राहुल यहां पर कर देना फुल स्टॉप और हिंदी का फुल स्टॉप उभो लीटो टपकू न करता हो. प्रिय मित्र राहुल ऐसा लिख देना है. हो गया. यहाँ इसके नीचे दिनांक की नीचे की लाइन में लिखना है. इतना कंपल्सरी, इतना लिख लिया यानी कि हमें इतना पता हो गया है, पता चल गया है कि पत्र कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है. अब यहां से हमारा पत्र शुरू होने वाला है. तो पत्र बिल्कुल हमारा ये 5 मार्क है ना, हमें पूरे के पूरे मार्क यहाँ पर कवर करने होंगे तो तभी हम सेक्शन डी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे. प्रिय मित्र राहुल नाम कोई भी हो सकता है. आपको भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले का दोनों का भी एड्रेस दिया हो सकता है. और कभी ज्यादातर ये जब भी થોડું કામ અઘરું કરવાનું હોય ને એટલે ડબલ એડ્રેસ ભેગા કરે એટલે તમને કન્ફ્યુઝ કરશે. પણ તમારે એવું જોઈ લેવાનું કે પત્ર મોકલે છે કોણ અને પત્ર મેળવે છે કોણ. તમારે કોનું નામ અને સરનામું લખવાનું, પત્ર કોણ મોકલે છે અહીંયા હંમેશા મોકલનારનું નામ, સરનામું અને તારીખ આ 3 વસ્તુ લખાઈ જાય એટલે પછી અહીં આવવાનું પ્રિય મિત્ર. હવે મિત્રની જગ્યાએ હવે એવું કે કોઈક વડીલ છે, કાકા છે, બાપા છે, પપ્પા છે, મમ્મી છે તો ત્યાં આવી જાય પ્રિયની જગ્યાએ પૂજ્ય લખી નખાય. આપણાથી નાના હોય તો ચિરંજીવી. પ્રિય બધામાં આપણા ઇક્વલ એજ હોય, નાની એજ હોય એના માટે પ્રિય વાપરી શકાય. પણ વડીલ હોય, મોટા હોય તો એના માટે આદરણીય, માનનીય કે શ્રીમાન આવા શબ્દ. પણ શ્રીમાન મોટા ભાગે ઓફિશિયલ લેટરની અંદર નથી લખાય છે. ટૂંકમાં ફોર્મલ લેટર હોય ને એની અંદર શ્રીમાન, આદરણીય વધારે. બાકી આપણાથી મોટા હોય, વડીલ હોય એટલે એક શબ્દ ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં લખી જ નાખવાનો. કયો? પૂજ્ય. પૂજ્ય દાદાજી, પૂજ્ય पिताश्री આવું આપણે લખી નાખવાનું. જેમ અહીં આપણે લખ્યું છે પ્રિય મિત્ર રાहुल. यहाँ से हमारा पत्र लिखना है. अब पत्र यहाँ पर तो ये तो फॉर्मेट हो गया. अब किसके बारे में पत्र लिखना है? जीवन में वृक्षों का महत्व. तो यहां से पैराग्राफ कर देना. पहले शुरुआत में क्या लिखना है? आपको लिखना आता होना चाहिए. पूरा 1 पेज भर देना है. नीचे क्या लिखना है? प्रिय मित्र राहुल, अच्छा होगा तुम्हारा पत्र मिला. बड़ी खुशी हुई कि 10वीं कक्षा में तो तुम्हें अच्छे प्रतिशत मिले हैं, अच्छे मार्क्स मिले हैं. ये जानकर बड़े खुश हुए. कुछ ही दिनों में 5 जून आ रही है ऐसा लिख देना. और 5 जून को हमारे यहाँ पर्यावरण दिन के रूप में मनाया जाता है. हमें इसीलिए मैंने खास तुम्हें भी ये पत्र भेजा है कि 5 जून के दिन हमारे जीवन में 5 जून के दिन पर्यावरण दिन है और पर्यावरण दिन का महत्व समझाने के लिए मैंने तुम्हें पत्र भेजा है. फिलहाल मैं एक एनवायरमेंट शिविर में या फिर पर्यावरण शिविर में गया था और मुझे वृक्षों के बारे में और प्रकृति के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली है. और ऐसी पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें लिख देना. पर्यावरण हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है. यदि पर्यावरण को हम नहीं संभालेंगे तो कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद पूरी मनुष्य जाति का भी नाश हो सकता है. हमें पर्यावरण को कैसे संभालना चाहिए, वृक्ष बोने चाहिए. हमारे आसपास में हमारे हर एक जन्मदिन पर हमें कम से कम 1 पेड़ कहीं ना कहीं बोना चाहिए और वृक्षों की मावजत करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने चाहिए. ज्यादातर जो वृक्ष काटे जाते हैं उसको बंद करवाने का प्रयत्न करवाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा. और कम से कम प्रदूषण हो, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो. ऐसी अच्छी पर्यावरण के रिलेटेड और वृक्षों का महत्व, क्योंकि वृक्षों के साथ ही पर्यावरण जुड़ा हुआ है. मैंने ज्यादातर पर्यावरण के बारे में लिखा लेकिन यहाँ पर वृक्षों का महत्व यानी कि आप लिख सकते हो
वृक्षों के बारे में 1 से 2 पैराग्राफ में लिख देना। और मान लीजिए कि यहां तक आपने वृक्षों के बारे में ये सब लिख दिया है, यहां तक आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। और अंत में लिख देना आपका मित्र कौन सी साइड में, राइट साइड, हमारी दाहिनी साइड लिख देना है आपका, या सॉरी तुम्हारा मित्र। यहां पर हम मानवाचक शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, मित्र है इसलिए यहां पर क्या लिखना है, तुम्हारा मित्र। यहां ऊपर जो नाम है वही लिख देना है मानव। और लास्ट में ऐसी भी कुछ बातें करना, तुम्हारे माता पिता को मेरा नमस्कार कहना, और जब भी आप यहाँ पर आओ तो मुझे अवश्य बताना, वगैरह कुछ अच्छी अच्छी बातें। शायद आपको जो बातें वो कैसे पत्र लिखना है आपको पता ही होगा, तो ऐसी बातें लिखकर अंत में लास्ट में ये लिख देना है तुम्हारा मित्र, कोमा करना यहाँ पर, मानव यहाँ पर करना है फुल स्टॉप। और ये हमारा 5 मार्क का 5 में से कम 4 मार्क ऐसे आप लिखेंगे, फुल्ली फॉर्मेट के साथ आप लिखेंगे तो 5 में से 4 या 5 आपको अवश्य ही मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गद्यार्थ ग्रहण। गद्यार्थ ग्रहण बेटा बहुत ही इजी है, सबसे इजी, सबसे सरल कोई टॉपिक है तो वो है हमारा गद्यार्थ ग्रहण। कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का। क्या लिखा जाएगा, यहां पर कोई ना कोई पैराग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको, कोई ना कोई पैराग्राफ दिया जाएगा। अब क्या होगा, इसमें से पैराग्राफ के नीचे 6 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और आपको करना क्या है, 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त पैराग्राफ में से आपको ढूंढने हैं, है ना सरल। आपको आंसर उसमें होगा, लेकिन याद रखना 6 में से 2 क्वेश्चन ग्रामेटिक होंगे। ग्रामेटिक यानी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी, लेकिन बिल्कुल इजी होने वाला है ये, मैं ये मानता हूं। थोड़ी सी 5-10 मिनट 1-2 एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे, या फिर बिल्कुल इजी ही ये पूछे जाते हैं। और आपको समझ में आना चाहिए, पहले 1 बार पैराग्राफ को पढ़ लेना। क्या कर लेना, जो पैराग्राफ है छोटा सा 10 लाइन के अंदर का एक पैराग्राफ होता है, उसको 1-2 बार पढ़ लेना, बाद में उसके प्रश्नों को समझना, और पैराग्राफ में से ढूंढ कर, यानी कि उसको ढूंढना होगा। और पूरे के पूरे वाक्य को कॉपी मत करना, जो वाक्य रचना प्रश्न की है वो वाक्य रचना में उसका आंसर दे देना। समझ में आया। નીચે 6 પ્રશ્ન હશે, ઉપર પેરેગ્રાફ હશે, પેરેગ્રાફને 1-2 વાર વાંચી લેવાનો. નીચે પ્રશ્ન આપેલો છે, પ્રશ્નમાં શું માંગ્યું છે એ ડિટેલ તમારે ઉપરના પેરેગ્રાફમાંથી ગોતી લેવાની. શુદ્ધ ગુજરાતીમાં સમજી લ્યો, પેરેગ્રાફમાંથી ડિટેલ લખવાની છે, એ કોપી કરવાની નથી. બેઠે બેઠા વાક્યો લઈને સીધા ચોંટાડવાના નથી, એને તમારે થોડાક સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ કરવું પડશે, વાક્ય રચના ચેન્જ કરવી પડશે તો માર્ક્સ મળશે. ને એમાં 2 પ્રશ્ન સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી ને આને રિલેટેડ કંઈક હશે, અને બહુ ઈઝી છે. 1-2 થોડુંક ઉતાવળ કરતા નહીં, નકર આ 6 માર્ક નુકસાન કરી દેશે. આ 6 માર્ક લગભગ 10 મિનિટમાં તમે આનો આન્સર આપી શકશો. પણ એમાં 10 મિનિટ એટલા માટે બોલું છું, 5 મિનિટમાં ખાલી પેરેગ્રાફ વાંચો, પેરેગ્રાફને વાંચો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, અને પછી નીચે પ્રશ્ન વાંચો, પ્રશ્નને પછી ગોતો. પેરેગ્રાફમાં ડિટેલમાં ધ્યાનથી શાંતિથી એના જવાબ તમારે ગોતવાના છે. આ 6 માર્ક રોકડા છે, પત્રના 5 માર્ક રોકડા છે, ટિપ્પણી 3 માર્કની 1-2 વાર વાંચવી પડશે, કારણ કે અને આ ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પત્ર લેખનમાં કાંઈ વાંચેલું નહીં હોય તો પણ આવડી જાય એવા આ ટોપિક છે. નેક્સ્ટ છે કહાની. હવે તમને મુદ્દા આપેલા હશે. શું આપેલા હશે? મુદ્દા. એ મુદ્દાને 2-3 વાર વાંચવા પડશે. એના આધારે તમારા મગજમાં એક કહાની, કહાની એટલે વાર્તા, પણ વાર્તા રે વાર્તા ને ભાભોડો ચારતા गुजराती में नट लखवानु, हिंदी में लखवानु छे. हिंदी में आपको एक कहानी बनानी होगी. कहां पर? हमारे दिमाग में. लेकिन हमारे दिमाग की कहानी नहीं होनी चाहिए. पॉइंट्स, उसके मुद्दे यहाँ पर लिखने आपको लिखे होंगे, उस मुद्दों का उपयोग करके, यानी कि एक राजा, बीमार होना, शहर में जाना, एक साधु मिलना, उपाय देना, ऐसे कुछ पॉइंट दिए जाएंगे और उस पॉइंट के आधार पर हमें एक कहानी बनानी है, हमें एक स्टोरी बनानी है.
जैसे, और 5 मार्क्स इसके होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 5। पूरे के पूरे 5 मार्क्स में ये टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। उसमें से 3 मार्क कहानी के हैं, 1 मार्क शीर्षक का है और 1 मार्क बोध का है। याद रखना, सबसे पहले ऊपर क्या लिख देना है? सबसे ऊपर पहले तो आपको कहानी के मुद्दे 1-2 बार पढ़ने हैं। आपके दिमाग में थोड़ी सी कहानी बन जानी चाहिए कि इस कहानी में कुछ ऐसी बात हो रही है, होने वाली है। तो पहले कहानी आपके दिमाग में, कहानी का ढांचा यानी कि જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ વાર્તા શું છે ને એ તમને મગજમાં સમજાઈ જાય, એટલે એને રિલેટેડ એનો મેઇન ભાવ શું છે એને રિલેટેડ 2 થી 3 કે 4 શબ્દોનું એક શીર્ષક, એક ટાઇટલ, નામ આપી દેવાનું। ઉપર સેન્ટરમાં શીર્ષક લખાઈ જાય, પછી નીચે લખી નાખવાની કહાની। કેટલી લખવાની? 1 પેજની અંદર લખવાનું છે, 3-4 પેરેગ્રાફમાં લખી નાખવાનું છે, અને છેલ્લે બોધ, એમાંથી શું શીખવા મળે છે આ લખવું ફરજિયાત છે। જે બી તમને જે વાર્તા તમે વાંચી છે એ વાર્તામાંથી કંઈક શીખામણ હશે, કંઈક બોધ, એમાંથી શું શીખવા મળે છે એ બોધ તમારે 1 થી 2 વાક્યમાં લખી નાખવાનો છે। તો શીર્ષક સરસ મજાનું એટ્રેક્ટિવ મૂકવાનું કે એને શીર્ષક કેવું હોવું જોઈએ? જે આખા વાર્તામાં મેઇન વસ્તુ હોય ને, આખા વાર્તામાં જે મેઇન થતું હોય એવું શીર્ષક તમારે બનાવવાનું છે। એની નીચે કહાની લખવાની। કહાની કેટલી લખવાની છે? 20 થી 22 લીટીની આસપાસમાં લખવાની છે। છેલ્લે 1-2 લીટીમાં તમારે બોધ લખવાનો છે। અને છેલ્લે મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ। કેટલા માર્કમાં પૂછાય છે બેટા? પૂરેપૂરા 7 માર્ક। અને ભૂકા કાઢી નાખે એવો નિબંધ, આની બહાર નિબંધ જાય એવું મને લાગતું નથી। આટલા નિબંધ બેટા તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે, એટલે આ 7 માંથી મિનિમમ 5 માર્ક કવર થઈ જશે। નિબંધ કેમ લખાય? તમને નિબંધનો એક ટોપિક આપ્યો હશે, ટોપિકની નીચે થોડાક મુદ્દા આપેલા હશે, દરેકે દરેક મુદ્દાનો ઉપયોગ કરજો। નિબંધમાં ફાંકા ન મારવાના હોય। આ આપણા બહુ જ ખરાબ મેન્ટાલિટી છે સાહેબ। નિબંધ હું લખવામાં હોય કે તો નિબંધમાં એક ટોપિક આપ્યો, મેરા ભારત મહાન, તો ભારત દેશ વિશે આમ ને એવું આપણે કરીને પન્ના ભરી દઈએ। હા, માર્ક મળશે, પણ સારા માર્ક લેવા હોય ને તો કામ શું કરાય? નીચે પોઈન્ટ આપેલા હોય, મુદ્દા આપેલા હોય, એ દરેકે દરેક મુદ્દાનો ઉપયોગ કરીને નિબંધ લખો મિત્રો, 5 થી વધારે માર્ક મળશે તમને। મુદ્દાને રિલેટેડ અને પોઝિટિવ વ્યૂ આપણો દેખાવો જોઈએ। થોડીક આંકડાકીય માહિતી, સારી ઇન્ફોર્મેશનનો ઉપયોગ કરેલો હોય, કોટેશનનો ઉપયોગ કરેલો હોય, એટલે 5 થી પણ વધારે માર્ક્સ આપણે કવર કરી શકીએ। હવે નિબંધની અંદર આપણને પૂછાઈ શકે એવો આ વર્ષ માટે સૌથી મોટો અને સૌથી મહત્વનો કોઈ ટોપિક હોય તો એ છે મેરા ભારત મહાન। કારણ કે આને રિલેટેડ આપણા ઘણા બધા ચેપ્ટરોની અંદર પણ આવી વાત થઈ છે। મેરા ભારત મહાન। નેક્સ્ટ છે વિજ્ઞાન की सिद्धियां, વિજ્ઞાન વરદાન या અભિશાપ, બેમાંથી એક હોઈ શકે। પેલું એક આખું ચેપ્ટર છે વિજ્ઞાનને રિલેટેડ, માધવન અને રામીશનું, તો એને રિલેટેડ સાયન્સ, विज्ञान की सिद्धियां। नेक्स्ट है मातृ प्रेम, मेरी माँ, चैप्टर के आधार पर मातृ प्रेम, मेरी माँ, ये भी निबंध हो सकता है। नेक्स्ट है वृद्धों की दयनीय दशा, बूढ़ी काकी, चैप्टर के रिलेटेड ये टॉपिक है, वृद्धों की दयनीय दशा। उसके बाद है यह मोस्ट आईएमपी है, शायद इस बार होने वाला है स्त्री सशक्तिकरण, यह भी मोस्ट आईएमपी इस साल के लिए निबंध है, स्त्री सशक्तिकरण। और नेक्स्ट है प्रदूषण एक महासमस्या, यह भी पूछा जा सकता है। और स्वच्छ भारत, इसमें से सबसे हॉट फेवरेट मैं आपको बताऊंगा तो मेरा भारत महान, स्त्री सशक्तिकरण, विज्ञान की सिद्धियां, ये 3, और प्रदूषण शायद लिख दीजिए, प्रदूषण। ये 3-4 टॉपिक ऐसा है जो निबंध के लिए मोस्ट आईएमपी है, और इस साल शायद इसमें से कोई ना कोई निबंध लिख देना। कितना क्वांटिटी कितनी देनी है आपको? 7 मार्क्स के लिए हो सके तो 2 पेज लिख देना। कितने पेज लिख देना है? 2 पेज आपको लिख ही देना है। पॉइंट मत लिखना, बीच में कोटेशन लिखना, और हिंदी में लिखना, गलती से गुजराती मत लिख देना, हिंदी में ही पूरा निबंध लिखना है। तो ये था हमारे हिंदी विषय की बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम में। इसके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो मोस्ट आईएमपी जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए 4 मार्क्स वाले प्रश्न, ये सभी मैंने अलग से वीडियो में दिए हुए हैं। और मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, जो छोटे छोटे प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो शायद आपने देखा होगा। न देखा हो तो किसका इंतजार कर रहे हो, अभी देख लीजिए। हमारे चैनल में योगी गुजराती यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो ना
तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अभी मुझे परवानगी दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।